Hello friends, I hope you are enjoying these series. Today we are going to discuss some important questions of D and F block elements. Very important chapter from inorganic chemistry. Let's begin with this. What are D block elements? Write their general electronic configuration. D block elements, those elements in which last electron enters in d orbital of penultimate shell are called D block elements. What is the meaning of penultimate shell? Second last shell. Their general electronic configuration is n-1d 1 to 10 and s1 to 2. For example, if we take scandium is 21. स्कैंडियम से पहले वाली नोबल गैस है आर्गन 18, in which last electron enters in 3p6. After 3p6, electron enter in 4s2, so it becomes 20. Now the 21st electron, it enters in d orbital, but not of fourth shell. It enters in the d orbital of third shell, penultimate shell, 3d1. That is why we call the D block elements are those elements in which last electron enters in d orbital of penultimate shell, and their general electronic configuration is n-1d 1 to 10 ns1 to 2. Initially electron enter in 4s gets filled, after that electron enter in 3d, but we write first 3d and then 4s. Next, group 12 elements zinc, cadmium and mercury are not regarded as transition elements. Why? We have heard that D block elements are also known as transition elements. Now what is the definition of transition elements? Transition elements are those elements which contain partly filled d orbital in their atomic state, either in their atomic state or any of the stable ionic state. मीन्स कोई भी चाहे एटॉमिक स्टेट हो या स्टेबल आयनिक स्टेट हो, उसमें डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट हैव D10 कॉन्फ़िगरेशन. तो अगर पार्टली फिल्ड है D1 से D9 है, देन इट इज कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. नाउ वी नो दैट पोजीशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल इज 3 to 12. in groups 3 to 12. But group 12 elements zinc, cadmium and mercury are not regarded as transition elements. Why? These elements have fully filled d orbitals in their atomic state as well as in stable oxidation states. Stable oxidation states +1 and +2. Mercury shows +1 and +2, cadmium shows +2, zinc shows +2. So if we take the example of zinc atomic number 30, its configuration is argon 3d10 4s2. So in atomic state, its d orbital is fully filled. As you know that d subshell may contain maximum 10 electrons. d में maximum कितने electron आ सकते हैं? 10. If it loses electrons to form zinc ion, Zn2+ ion, then naturally the outermost shell is 4s. So 2 electrons are lost from 4s and its configuration is 3d10.
So in atomic state as well as in ionic state, d orbital is fully filled. That is why group 12 elements zinc, cadmium and mercury are not regarded as transition elements. These are simply d block elements. Next, silver and copper atoms have completely filled d orbitals in ground state. How can you say that these are transition elements? Now, copper, silver, gold. These belong to group 11. Why these are transition elements? See, copper atomic number is 29. Its electronic configuration is 29. Electronic configuration is argon 3d10 4s1. Chromium and copper has exceptional configuration in which one electron from 4s jumps to 3d to make it fully filled, because half filled and fully filled orbitals are more stable. So in copper atomic state we observe d orbital is fully filled. In +1 state, one electron is lost from 4s, still it has fully filled. But in copper 2 plus, now the electron is lost from 3d and it becomes partly filled. It is not fully filled. D9 1 to D9 is partly filled. Partly filled होने की वजह से it is transition elements. So how will write? When we have to write the question answer, first we write the configuration and then we write such elements have partly filled d orbitals in +2 state, hence these are considered as transition elements. Partly filled d orbitals either in their atomic state or any of the stable ionic state. Got it? Next, explain the following observations. The enthalpy of atomization of transition elements are quite high. First question arises, what is the meaning of enthalpy of atomization? देखिए, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं ये हैवी मेटल्स होते हैं और ये इनका एक पूरा एक क्रिस्टल लैटिस होता है, क्योंकि मेटल एक आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं है. अगर आप कॉपर का एक छोटा सा भी पीस लेंगे तो यू ऑब्जर्व दैट दीज आर अरेंज्ड, they have a 3-dimensional arrangement of constituent particles. So this arrangement is known as crystal. 3-dimensional arrangement is metal crystal. Metal crystal को अगर हम हीट करें, इतनी एनर्जी दे इन द फॉर्म ऑफ हीट कि ये मेटल जो सॉलिड स्टेट में है ये ब्रेक होके गैसियस मेटल एटम्स में कन्वर्ट हो जाए. आइसोलेटेड मेटल की एक एक मेटल एटम अलग हो जाए और आइसोलेट हो जाए, उसके लिए जो एनर्जी दी जाती है दिस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल लैटिस इनटू कंस्टिट्यूएंट आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम. तो naturally if force of enthalpy of atomization is directly proportional to strength of intermolecular forces, interparticle forces. अगर interparticle forces strong होंगे तो enthalpy of atomization high होगी, interparticle forces weak होंगे तो enthalpy of atomization low होगी. So why they have enthalpy of atomization? So answer is transition metals have large number of unpaired electrons, large number of unpaired
electrons, hence they have strong metallic bonds. They have strong metallic bonds resulting in high enthalpy of atomization और high delta HA values. क्योंकि strong forces होंगे तो enthalpy of atomization will be more. Got it? Transition elements exhibit large number of oxidation state. आपने देखा है कि transition elements की एक property है, they exhibit large number of oxidation states. Why? See, scandium, titanium, vanadium, chromium. If we write its configuration, it is 21, 22, 23, 24. Its configuration is argon 3d1 4s2. This is argon 3d2 4s2. This is argon 3d3 4s2. 23. This is argon 3d5 4s1. So they can, because the energy difference between the d and the s orbital is less, so they can lose electrons from the ns orbital as well as n-1 orbital, and they show maximum oxidation state. Scandium is the transition element which shows only one oxidation state, that is +3, because after losing one electron it can lose electron from 3d also. Titanium, if it loses electron, titanium is 3d2 4s2. If it loses electron from 4s, it shows +2. If it loses from this, +3, then +4. Vanadium can show +2, +3, +4, +5. Chromium shows +2, +3, +4, +5 and +6. And the manganese, it can show up to +7. And after that pairing of electrons begin. So what is the reason they show variable oxidation state? Transition elements Te can lose electrons from Ns as well as n-1 d orbitals. Because energy difference between two subshells is less. Hence, these show large number of oxidation states. This is characteristic feature of d block elements, large number of oxidation states. तो कई बार क्वेश्चन आता है, नेम द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज which shows only one oxidation state, then answer is scandium. It is not zinc, because zinc is not a transition element. And second one is, name the element which shows maximum number of oxidation states in first transition series, then our answer will be manganese, because manganese can show oxidation state from +2 to +7, and the common oxidation state of d block elements or transition elements is +2. नेक्स्ट देखिए, इसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि आंसर तो आपको बता ही रही हूँ, आंसर के साथ साथ वी आर एक्सप्लेनिंग द रीजन ऑल्सो, सो योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर नाउ. The E0 M2 plus M value for copper is positive. What is possible reason for this? अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू देखें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, तो देखते हैं कि केवल कॉपर की ही वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सबकी नेगेटिव है. अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे किया जाता है? देखो, E0 वैल्यू एक्चुअली क्या होता है, जब मेटल एटम आपको बताया था सॉलिड स्टेट में है,
First we convert into isolated gaseous atom. This is lattice. This is known as enthalpy of atomization. या वो isolated है तो enthalpy of sublimation. Then it is converted into gaseous ion. This energy is called ionization energy. And then we do its hydration. It is treated with water so that it forms hydrated ion. And enthalpy is called delta H hydration, and this is delta H total. So we can say that enthalpy, total enthalpy change is sum of enthalpy of atomization plus ionization energy plus delta H hydration energy. Here these two values are, these are endothermic process, means they require heat, and this is exothermic process. Delta H hydration is, enthalpy of hydration is always negative. So if delta H total is positive, कब positive होगा? When sum of delta enthalpy of atomization plus ionization energy is greater than hydration enthalpy. And it is negative if enthalpy of hydration is greater than sum of these two. तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है अगर डेल्टा H टोटल पॉजिटिव है. If delta H total is positive, then E naught M2 plus M is also positive. तो कॉपर के लिए अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है प्लस 0.34, तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि फॉर कॉपर एंथैल्पी ऑफ, वी कैन से फॉर कॉपर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. देखिए कॉपर में जो +2 इलेक्ट्रॉन है दैट इज रिमूव फ्रॉम अ फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल. एक कॉपर +1 में गया, कॉपर +1 में इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव हो रहा है, बट कॉपर में सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल, सो इट्स एक्सेप्शनली, इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज एक्सेप्शनली हाई. तो इन केस ऑफ कॉपर सम ऑफ enthalpy of atomization and ionization energy is greater than enthalpy of hydration. और उसका रीजन क्या बताया? आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है? आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज़्यादा है बिकॉज सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम अ फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल. नेक्स्ट, why is Cr2 plus reducing and Mn3 plus oxidizing? Mn3 plus oxidizing when both have D4 configuration. Let's write the configuration. So you will if you write the electronic configuration, then you will able to explain the answer yourself. तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आप क्या लिखिए? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. Chromium 24, configuration is argon 3d5 4s1. Chromium 2 plus, 2 electrons, 1 electron is lost from 4s, other is, so it is 3d4. Chromium 3 plus is argon 3d3. Now come to manganese. Manganese atomic number 25, it's argon 18, 3d5 4s2, Mn2 plus 2 electrons are lost from, it's 3d5, and Mn3 plus is argon 3d4. So our question is, both have d4 configuration. It's correct. Chromium 2 plus और Mn3 plus का D4 configuration है. But chromium is reducing. Reducing का मतलब होता है जो दूसरों को reduce करे और खुद oxidize हो. इसका मतलब क्या है?
Cr2 plus has strong tendency to oxidize into Cr3 plus. अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे D4 कन्फिग्रेशन है, यहाँ D3 हो रहा है, तो D3 के केस में क्या जरूरत है? D3 इज नॉट हाफ फिल्ड, तो क्यों है? इसका कारण है D3, in case of D3 when it forms a complex then it's T2G. आपको कल बताया था कि D orbitals जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उस केस में it splits up into two sets T2G and EG. तो इस केस में T2G जो है वो क्या है? हाफ फिल्ड है. T2G हाफ फिल्ड होगा तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. तो Cr2 plus is a reducing because it has tendency to get oxidized into Cr3 plus, as in D3 configuration T2G3 is half filled. Got it? So Mn3 plus is ऑक्सीडाइजिंग. ऑक्सीडाइजिंग का मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा. तो इसका मतलब Mn3 plus has strong tendency to reduce into Mn2 plus. क्यों? क्योंकि Mn2 plus का कैसा कन्फिग्रेशन है? D5. D5 means half filled subshell or half filled orbitals, and half filled orbitals have more stability. तो Mn2 अगर मैग्नीज +3 स्टेट में है तो मैग्नीज चाहेगा कि वो फटाफट किस में ऑक्सीडाइज, किस में रिड्यूस हो जाए? Mn2 प्लस में. और जो खुद रिड्यूस होगा वो दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन. सो Mn3 प्लस एंड these have D4 configuration but their nature is different. One is oxidizing and other is reducing. So if you understand in this way, you can easily write your answer. Give reason. देखिए इस टॉपिक में जैसा कि आपको मैंने बताया डी ब्लॉक में पहला जो क्वेश्चंस है वो है प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो उसमें सारे आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे सब एक्सप्लेन पाए और गिव रीजन या अकाउंट फॉर द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. सेकेंड इसमें आता है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैग्नेट एंड देयर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज. एंड थर्ड आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. तो जितने भी प्रोबेबल गिव रीजन और अकाउंट फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू कवर अप दीज क्वेश्चंस. ए, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में जो लिगेंड्स हैं दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम और आयन. एंड मेटल कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स और मेटल पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. तो इतना ज़्यादा चार्ज नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स आता है उसको वो बैलेंस कर लेता है. तो ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. आंसर इज गिव रीजन. ट्रांजिशन मेटल्स हैव small size and vacant d orbitals to accept electron pairs donated by ligands. That is why they form complex. कल हमने पढ़ा था CrNH3 whole 4 Cl2 plus. They have vacant orbitals to accept the electron pairs. B, transition metals form colored compounds. देखिए कौन से ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स विच हैव पार्टली फिल्ड d ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल. और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको बताया था कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और चाहे ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो या
टेट्राहेड्रल हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर टेट्राहेड्रल है तो इट्स Eg, इट स्प्लिट्स अप इनटू T2G एंड Eg, दोनों ही D के पार्ट है और उस केस में DD ट्रांजिशन होता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स हैव unpaired electron, so they undergo DD transition by absorbing light of suitable wavelength from visible light and impart color to the crystal, color to the compound। देखिए कंपाउंड में तो दो चीज़ें इसमें आ गई, कलर तभी होगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। कब कलर्ड होगा? जब कंपाउंड में क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे जब ये वाइट लाइट आएगी तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इससे कुछ सूटेबल, देखिए वाइट लाइट हैज 7 colors with give, so if energy difference is large it will naturally absorb the radiations of higher frequency, higher energy। अगर एनर्जी डिफरेंस कम है तो वो कम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे कोई ब्लूइश लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर विल बी रेड कलर को करेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर विल बी ब्लू। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग कितनी हो रही है, जो लीगेंड अप्रोच कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके बेसिस पे इट विल एब्जॉर्ब suitable radiations from the visible light and impart color to the flame। और ध्यान रखिए जो कलर, जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब किए हैं वो नहीं, कलर हमेशा कौन सा होगा? कॉम्प्लीमेंट्री कलर, मीन्स जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली वाइट लाइट में से उसके एब्जॉर्ब होने के बाद बाकी का जो मिला जुला कलर होगा दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज transition metals and their compound, transition elements form interstitial compounds। transition metals form interstitial compounds। interstitial compounds क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि जो transition elements जो होते हैं they are arranged in a crystal lattice और उसका CCP, HCP, और ये जो गैप्स है ये गैप्स क्या कहलाते हैं? इंटरस्टिशियल वॉइड्स। तो इन इंटरस्टिशियल वॉइड्स में स्मॉल साइज एटम्स जो होते हैं वो स्मॉल साइज एटम्स दे ऑक्यूपाई द स्पेस एंड इट इम्प्रूव्स द प्रॉपर्टीज। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंटरस्टिशियल स्पेस है, इंटरस्टिशियल वॉइड्स है जहाँ पे छोटे साइज के एटम्स, कौन कौन से छोटे साइज के एटम्स? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये छोटे एटम्स इनके इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं एंड इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज। दीज आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो व्हाई दे फॉर्म, दे आर आस्किंग, तो हम कह सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव transition elements have interstitial voids in their crystal lattice, which are occupied by small size atoms like
hydrogen, carbon, boron, nitrogen, etc. For example, tungsten carbide, WC, tungsten carbide. So tungsten carbide has, and such compounds have improved properties. इन compounds की जो properties होती हैं वो क्या होती है? Improved होती है, better than pure metal. Now D is question. What is D? Transition metals and their compound act as catalyst. क्या होता है catalyst? Catalysts are the substances which increase the rate of reaction, alter the rate of reaction. Generally catalyst को हम positive ही लेते हैं. They increase the rate of reaction without being consumed. और ऐसा क्यों होता है? ये हमने chemical kinetics में भी पढ़ा था. Transition metals they form intermediate catalyst provides a new path of low activation energy. तो ट्रांजिशन मेटल्स ही क्यों यूज होते हैं? आपने देखा है जितनी भी केमिकल ज़्यादातर रिएक्शंस में, जैसे हाइड्रोजनेशन आपने पढ़ा है, हाइड्रोजनेशन एथीन का हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं या ऑयल का हाइड्रोजनेशन करते हैं, आपने पढ़ा है, बहुत कॉमन रिएक्शन है. ऑयल का हाइड्रोजनेशन करते हैं निकल की प्रेजेंस में, देन इट फॉर्म्स वनस्पति घी. मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस प्लैटिनम, पैलेडियम और जो है कॉपर, ये दीज आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. कंपाउंड्स इसके कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं. तो उसका रीजन क्या है? पहला रीजन इज ट्रांजिशन मेटल्स form, transition metals show variable oxidation states, and hence can form intermediate compounds and can form intermediate compounds which increase या which provide new path of low activation energy, which provide a new path of low activation energy. एक नया पाथ प्रोवाइड कर देते हैं जिसके लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस. जैसे इन केस ऑफ आयोडाइड एंड परसल्फेट रिएक्शन, फेरिक आयंस आर यूज्ड एज कैटलिस्ट. क्यों? क्योंकि फेरिक आयंस जो होते हैं, फेरिक आयंस जो हैं वो फेरस आयंस भी बना सकते हैं. क्या बना सकते हैं? फेरस आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो अगर आप मैकेनिज्म देखेंगे तो फेरिक आयंस सबसे पहले आयोडाइड आयंस को रिएक्ट करके I2 सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं और खुद किस में रिड्यूस हो जाते हैं? Fe2+ में. इन सेकेंड स्टेप दिस Fe2+ reacts with persulfate ion, oxidizes it into sulfate, converts into sulfate ion and itself get oxidized into ferric ions. तो यहाँ पे ferric ion कंज्यूम हुआ और फेरस में चेंज हुआ. इसने एक नया पाथ प्रोवाइड किया और फेरस आयन रिएक्शन में लास्ट में क्या हो गए? फेरिक आयंस में कन्वर्ट हो गए. तो हमें ऐसा लगता है कि कैटलिस्ट ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, बट एक्चुअली कैटलिस्ट पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन एंड इन द एंड इट इज रिकवर्ड. तो हमें ऐसा लगता है कैटलिस्ट रिएक्ट ही नहीं किया. सेकेंड केस में, इन सम केसेस ट्रांजिशन मेटल्स हैव फ्री वैलेंसीज. व्हाट इज द सेकेंड रीजन? Such elements have free valencies on their surface, so readily absorb reactants on its surface.
reactants on its surface. Okay, so these are the two reasons. If the question comes, you have to mention the two reasons. Next, transition metals form alloys. क्या होते हैं बेटा alloys? Alloys are homogeneous mixture of two or more metals. अब alloys बनाने में transition metals ही क्यों यूज होते हैं? उसका कारण क्या है कि आप देखोगे, अगर transition series में आप देखोगे तो middle of the element have almost similar size. तो transition elements have almost similar size, so they can replace some atoms, metal atoms of host atom and can form alloys. So it is because of similar size of transition elements, similar size. It is because of similar size of transition elements. Example, brass, bronze, स्टील एटसेट्रा. तो ये होस्ट एटम है, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है. होस्ट एटम्स आर अरेंज्ड इन अ क्रिस्टल लैटिस. कोई दूसरा एटम आ गया, बीच बीच में क्या आ गए, कोई दूसरे एटम्स आ गए, बट उससे क्रिस्टल लैटिस डिस्टर्ब नहीं हुआ एंड इट फॉर्म्स होमोजेनस मिक्सचर. सो दैट इज व्हाई दीज आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन. Why is the highest oxidation state of metal exhibit in its oxide or fluorides only? अभी हमने देखा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे वेनेडियम कैन शो +2, +3, +4, +5. क्रोमियम कैन शो अप टू +2, +3, +4, +5, +6, but the common are +3, +2. Manganese can show +2, +3, +4, +5, +6 and +7. तो ज़्यादातर आप देखोगे जो क्रोमियम है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को, जैसे CrO4 2-, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6. CrO4 2-, दिस इज -8, सो इट्स +6. क्रोमियम क्या शो कर रहा है, दिस क्रोमियम CrF6. वेनेडियम कैन फॉर्म VF5. मैग्नीज शोज इन ऑक्साइड MnO4-, जहाँ पे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7. तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल्स हैं वो शो कर रहे हैं, बट वो कौन से कंपाउंड्स में शो कर रहे हैं, फ्लोराइड्स पे एंड ऑक्साइड्स में. तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? आंसर इज, फर्स्ट थिंग इज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर small in size, and highly electronegative. So these can stabilize high positive charge on metal. मेटल का जो हाई पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है. अब मैग्नीज जैसे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फ्लोराइड में नहीं शो करता, ऑक्सो एनायन में शो कर रहा है. ऑक्सीजन की और ज़्यादा, अगर कई बार क्वेश्चन भी आता है कि ऑक्सीजन हैज़ मोर टेंडेंसी टू स्टेबलाइज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देन फ्लोरीन. तो उसका कारण क्या है कि जो ऑक्सीजन है
that can form multiple bond with d ऑर्बिटल, ये मेटल एटम, जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज का O नेगेटिव, oxygen can form pi bond or double bond with metal atom, and this type of overlapping is d pi p pi overlapping. तो उससे कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम रहता है. अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा मैग्नीज, तो मैग्नीज विल बी सराउंडेड बाय 7 फ्लोरीन एटम्स, और बहुत ज़्यादा एटम्स के साथ भी वो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा हो तो भी कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह भी होती है. तो इसलिए ऑक्सीजन हैज़ मोर प्रॉपर्टी और मोर टेंडेंसी टू फॉर्म compounds in higher oxidation state than fluorine, because it is able to form multiple bond with metal atom. And which type of overlapping is involved? D pi and p pi overlapping. So these were the questions, as I told you, based on give reason or the atomic and physical properties of metal. Now second part is preparation and properties of potassium dichromate, potassium permanganate, and their oxidizing properties. Next, first question is describe the preparation of potassium dichromate. Potassium dichromate is K2Cr2O7. पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, K2Cr2O7 is prepared from pyrolusite ore. Sorry, it is prepared from chromite ore. It is prepared from chromite ore. What is chromite ore? Chromite ore is FeCr2O4. It is a mixed oxide of FeO, Fe2O3, it is a mixed oxide of FeOCr2O3. It involves 3 steps. देखिए 3 steps हैं इसमें. अगर हम प्रिपरेशन की बात करें डिटेल में, पहला स्टेप है क्रोमाइट ओर टू कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर टू सोडियम क्रोमेट. उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रोमाइट ओर, इसमें याद रखो 487 FeCr2O4. 487 मीन्स 4 molecules of chromite ore, 8 molecules of sodium carbonate alkali की presence में, and 7 O2. 487 it forms sodium chromate. 8 Na2 है तो sodium chromate is 8 Na2CrO4 sodium chromate plus 2 Fe2O3 plus this carbonate is removed in the form of CO2. This chromite ores are of yellow color. ध्यान रखिए क्रोमाइट ओर्स कैसे होते हैं, येलो कलर के. एल्केलाइन मीडियम में क्रोमाइट ओर्स होते हैं और एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट्स आर. एल्केलाइन मीडियम में क्रोमेट स्टेबल होता है और एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट होता है. ये भी एक क्वेश्चन आता है. क्रोमाइट, सोडियम क्रोमेट इज ऑफ येलो कलर एंड दिस इज क्रोमाइट ओर. सेकेंड स्टेप इज एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट. सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन हम एसिडिफाई करते हैं विथ सल्फ्यूरिक एसिड so that it converts into sodium dichromate Na2Cr2O7. This is dichromate and forms Na2SO4 plus H2O. This sodium dichromate is orange, but sodium dichromate is soluble in water. तो उसके लिए फिर हम हमें बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट विच इज लेस सॉल्युबल इन वाटर. इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं KCl से. सो इट फॉर्म्स K2Cr2O7. बस यहाँ पे केवल सोडियम और पोटेशियम की एक्सचेंज होगा एंड इट फॉर्म्स NaCl. इन दिस वे ऑरेंज crystals of potassium dichromate are separated.
because it is less soluble in water. And so what you have to keep in mind, क्रोमाइट और से क्या बन रहा है, पहले सोडियम क्रोमेट, फिर सोडियम क्रोमेट का एसिडिफिकेशन हो रहा है, इट फॉर्म सोडियम डाइक्रोमेट एंड देन सोडियम डाइक्रोमेट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट. और इस पे क्वेश्चन भी आता है, व्हाट हैपन्स व्हेन pH ऑफ डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज रेज्ड. अगर आप pH करोगे, इंक्रीज करोगे, मीन्स यू आर मेकिंग द सॉल्यूशन एल्केलाइन. तो एल्केलाइन सॉल्यूशन में कौन एग्जिस्ट करेगा, क्रोमेट. ऑरेंज कलर सॉल्यूशन विल टर्न इनटू येलो कलर. नाउ नेक्स्ट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट. इज अ पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पे जरूर क्वेश्चन आता है, हाफ रिएक्शन गिवन हो सकती है या इस तरीके से पूछ सकते हैं, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, व्हाट हैपन्स व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ट्रीटेड दिस और एसिडिफाइड विद दिस. तो देखिए डाइक्रोमेट यहाँ पे हमें दो लिखनी है, एक आयोडाइड के साथ है और एक H2S के साथ है. तो सबसे पहले आपको लिखना है जो Cr2O7 2- है, एसिडिक मीडियम में वो खुद किस में रिड्यूस हो जाता है, Cr3+ में. अब 11th क्लास में आपने बैलेंसिंग सीखी है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से. यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 1 क्रोमियम है. पहले तो ध्यान रखिए कि डाइक्रोमेट गेट रिड्यूस टू Cr3+ और यहाँ पे आपने इक्वेशन इनको एटम्स को बैलेंस किया. फिर यहाँ उसके बाद आता है बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन. 7 ऑक्सीजन है तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 7H2O. यहाँ पे अब 14 हाइड्रोजन हो गए. हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वी ऐड H पॉजिटिव आयन 14H+. नाउ बैलेंस द चार्ज. यहाँ पे चार्ज है +6 और यहाँ पे चार्ज है +2, सो वी ऐड 6 इलेक्ट्रॉन्स. ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई. अब इट ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड इनटू आयोडीन. ये भी आपको ध्यान रखना है, किसको किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है. एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयोडाइड आयंस को I2 में कन्वर्ट करता है. बैलेंस द एटम्स. यहाँ पे 2 है, 2, यहाँ पे चार्ज -2 है, यहाँ पे चार्ज 0 है, सो वी ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब रिडॉक्स रिएक्शन में चार्ज बैलेंस करना है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो वी मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड वी ऐड द एंटायर इक्वेशन. So it becomes Cr2O7 2- plus 3 2s are 6, 6I negative plus 14H positive gives 2Cr3 plus 3I2 plus 7H2O. इस तरीके से बैलेंस हो जाता है. सेकेंड केस H2S. फर्स्ट इक्वेशन आपकी सेम रहेगी, Cr2O7 2- plus 14H positive plus 6 electrons give 2Cr3 plus 7H2O. किसको कर रहा है, H2S को किस में ऑक्सीडाइज करता है, सल्फर को. 1 सल्फर 1 सल्फर. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H आयन ऐड करते हैं एसिडिक मीडियम में. यहाँ पे आप 2 H आयन को ऐड किया, पॉजिटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगेन यहाँ पे चार्ज कितना था, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2. अगेन दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 3. सो बैलेंस्ड इक्वेशन इज Cr2O7 2- plus 3H2S plus 14H positive gives 2Cr3 plus 3S plus 7H2O. ओके, दिस साइड 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने रह जाएंगे, 14 ना रह के कितने रह जाएंगे, 8H पॉजिटिव. यहाँ पे 14 है, यहाँ 3 2 6 कैंसिल आउट, सो इट 14. यू कैन से हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2s are 6 and 8 14 and 7H2O 14. 7 oxygen atoms, 7 sulfur, 3 chromium, 2, so it is a balanced equation. Next, complete the following.
अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये किसकी रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज किसकी हैं, MnO4 नेगेटिव की, और H गिवन है एंड दिस इज ऑक्सिलेट आयन C2O4 2-। अब यहाँ पे हाफ इक्वेशन गिवन है और हाफ को हमें कंप्लीट करना है, तो उसके लिए बेटर रहेगा कि हम पहले कंप्लीट इक्वेशन लिख लें जिससे कि करेक्शन भी हो जाए, कहीं कुछ ऐड करना है तो ध्यान रखना है। एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव जो है, देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम, लेकिन जो पोटेशियम परमैग्नेट है दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल एंड एल्केलाइन मीडियम, और दोनों में रिएक्शंस डिफरेंट है। एसिडिक मीडियम में जो MnO4 नेगेटिव है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2+ में, ये आपको ध्यान रखना है। एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2+ में, 1 मैग्नीज 4H2O, बैलेंस ऑक्सीजन प्लस बैलेंस द हाइड्रोजन 8H पॉजिटिव, यहाँ चार्ज +7, यहाँ +2, तो यहाँ आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स। किसको चेंज कर रहा है ये, किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सिलेट आयंस को CO2 में करता है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि C2O4 2- इज ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन को किस में ऑक्सीडाइज करता है, CO2 में। यहाँ पे 2 कार्बन है तो बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है नहीं, बैलेंस द चार्ज, यहाँ 2 नेगेटिव, यहाँ 5 है, सो वी मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड सो द इक्वेशन बिकम्स, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स 10-10 हो जाए और कैंसिल आउट हो जाए। सो इट इज़ 2 MnO4 नेगेटिव। ये आपके ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन प्रैक्टिकल्स में भी आती है, टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, 5C2O4 2- प्लस 16, 8 2s are 16, 16H positive gives 2Mn2 plus 8H2O plus 10 CO2. So half part is given. So what will be the other half part? आप क्या लिखेंगे, 2Mn2 plus 8H2O plus 10 CO2. Got it? Next, 2 MnO4 negative, I negative plus H2O. What is given? 2 MnO4 negative, 2 MnO4 negative, I negative plus H2O, इसको आपको complete करना है and this is reaction is in alkaline medium. रिएक्शन किस में है, एल्केलाइन मीडियम में। अब एल्केलाइन मीडियम में रिएक्शन है तो आपको ध्यान रखना है, एल्केलाइन मीडियम में जो MnO4 नेगेटिव है वो खुद किस पे रिड्यूस होता है, +4 स्टेट पे MnO2 में। अब आप बैलेंस कीजिए, 4 नेगेटिव मैग्नीज, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड कर दिए, यहाँ पे अब आपने 4 हाइड्रोजन है, अगर एसिडिक होता तो आप क्या करते, 4H बट यहाँ पे 4H2O एंड द अदर साइड 4OH नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे माइनस, तो वी ऐड 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4H2O 2H2O, तो ओवरऑल वो बाद में बैलेंस कर लेंगे। ध्यान रखना है, एस एल्केलाइन मीडियम में I नेगेटिव इज गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू नॉट आयोडीन, आयोडेट आयन, IO3 नेगेटिव में ऑक्सीडाइज होता है। अगर एसिडिक होता तो I2 होता, ये एसिडिक नहीं है, एल्केलाइन मीडियम है, सो दिस इज IO3 नेगेटिव। बैलेंस कर लीजिए, 3H2O, H2O, 6H2O प्लस 6OH नेगेटिव आयन, यहाँ पे माइनस है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, टू इक्वलाइज वी मल्टीप्लाइड बाय 2, इन सबको ऐड कर दीजिए, पहले जो स्पीशीज कॉमन नहीं है वो लिख लीजिए, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव प्लस इधर है MnO2, 2 MnO2
प्लस IO3 नेगेटिव। अब वाटर और OH नेगेटिव दोनों तरफ है, यहाँ कितने वाटर हो गए, 4 2s are 8, 8 और 3 11, यहाँ पे कितने हो गए, 2 2s are 10, तो यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा है H2O। OH नेगेटिव आयन देखिए, वहाँ पे हो गए 8 एंड दिस साइड 6 प्लस यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, सो इट इज 2 OH नेगेटिव। सो व्हाट इफ यू कंप्लीट इट देन इट इज 2 MnO2 प्लस IO3 नेगेटिव प्लस 2 OH नेगेटिव। इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। गॉट इट? इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कंप्लीट या डिस्कस द ऑक्सीडाइजिंग कंप्लीट भी पूछा जा सकता है, और आपको ये आपको पता होना चाहिए, बैलेंसिंग के रूल्स पता है, कौन किस में रिड्यूस हो रहा है और किसको किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है। आपको पहले इसको लर्न कीजिए और फिर उसके बाद बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कीजिए। नाउ कम टू F ब्लॉक एलिमेंट्स लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, जिस पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मींस अगर हम लेंथेनम 2 एक लेंथेनाइड सीरीज में हम चले तो हम क्या देखते हैं, जो +3 स्टेट के आयंस है, स्पेशली इन +3 स्टेट, साइज जो होता है वो ग्रेजुअली क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इट इज डिफाइंड एज gradual decrease in size of Ln3 plus ions with increasing atomic number is called lengthenoid contraction। क्या बोलते हैं इसको, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मींस कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है साइज। एंड व्हाट इज द रीजन, इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। देखिए 4f इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं काफ़ी अंदर की तरफ होते हैं, और f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक होता जाएगा, और इसी की वजह से साइज जो लेंथेनाइड आयंस है उनका साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसकी एप्लीकेशंस हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की। पहला है जर्कोनियम एंड हैफ्नियम हैव आइडेंटिकल साइजेस, तो उसका भी इट इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इट इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही जर्कोनियम एंड हैफ्नियम, देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एंड दिस इज इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, एंड दिस इज हैफ्नियम, टेंटेलम। तो स्कैंडियम से इट्रियम, इट्रियम से लेंथेनम जाने पर साइज बढ़ रहा है, बट टाइटेनियम से जर्कोनियम जाने पर और जर्कोनियम एंड हैफ्नियम का, नायोबियम एंड टेंटेलम का, इसका एटॉमिक नंबर 57 है, इसका 72 है, बीच में 14 क्या आ रहे हैं, 4f ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन 4f, और 4f का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, तो इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है कि जर्कोनियम और हैफ्नियम का, नायोबियम एंड टेंटेलम मीन्स 4d एंड 5d सीरीज एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, तो इट इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बी, आंसर बी, एक्टिनॉइड
कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि मीन्स एक एक्टिनियम से दूसरे एक्टिनियम एलिमेंट की तरफ हम जाते हैं तो क्या होता है, साइज में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। मीन्स एक एक्टिनियम एलिमेंट से दूसरे एक्टिनियम एलिमेंट में जाएंगे तो साइज में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो ये किसकी वजह से? इट इज़ ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट very poor shielding effect of 5f इलेक्ट्रॉन्स। 4f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, बट 5f का और भी पुअर होता है। तो 5f इलेक्ट्रॉन्स शील्ड नहीं कर पाते न्यूक्लियर फोर्स से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमेशा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, सीरियम प्लस 4 is used as an oxidizing agent in volumetric analysis. सीरियम इज अ लेंथेनॉइड। देखिए सीरियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? लेंथेनॉइड्स की होती है +3। तो सीरियम +4 शो कर रहा है, जिसमें इसका क्यों शो कर रहा है? बिकॉज इट हैज़ 4f0 कन्फिग्रेशन। बट सीरियम की भी टेंडेंसी क्या रहती है कि वो किस में रिड्यूस हो जाए? +3 में। और जो खुद रिड्यूस होता है वो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका रीज़न क्या है? सीरियम +4 हैज़ टेंडेंसी to get reduced into सीरियम 3+, और जो खुद रिड्यूस होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज मिश मेटल? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम एप्लीकेशंस को छोड़ देते हैं, यूजेस को छोड़ देते हैं, पूरा चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें से ही आया हुआ है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, चैप्टर को एंड तक पढ़ना है आपको। ईच एंड एवरी टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, ये नहीं कि जो शुरू में गिवन है वही इम्पॉर्टेंट है, हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। मिश मेटल कंटेन्स 95% lanthanide metal, cerium, etc. 5% iron along with traces of sulfur, carbon, calcium and aluminium. It is used in magnesium based alloys. These are pyrophoric in nature. Pyrophoric means they easily catch fire. So these are used in production of bullets, shells and lighter flames. So again I have tried to cover up the entire chapter. Most of the topics I have taken, और कहीं कुछ रह गए हैं तो लेकिन मैंने साथ के साथ आपको ब्रीफिंग कर दी है, उनको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। इफ़ यू आर लाइकिंग द चैनल, प्लीज़ राइट योर कमेंट्स एंड शेयर and subscribe the channel. Thank you very much and all the best for your board exams.